Okay, guys, I'm starting my presentation. I'm sharing my screen with you. So we are starting now. If I First of all, let me know, am I audible? Am I audible, guys? Okay. Yes. Thanks for confirming. Okay, so we are starting. Hello, very good evening. Welcome to Tech. You are the career turning point with a Tech. I'm Tejaswini, one of the member of Tech, welcoming you in the resume writing session. So trust me, student, if you are the fresher, you are the experience, then session will be change your resume writing skill. If you are fresher, no worry. If you are experienced, then no worry. We will share both the format of resume where you can download the sample and edit that. Otherwise, I can help you out to review your resume, or I can tell you the points you can write on your resume. I will prepare you like that way you can add the point in your resume. So we will conduct the mock interview as well. But before that, let me tell you what we will today think and what we will explain you in the resume writing session. The first point, yes, the first point is the resume writing, the summary. Yes, it's very important. It should be eye catchy. Your summary is the first section of your resume. In the previous session, I told you that your resume is the first impression for your interviewer. Even I am the interviewer, most of the time I'm taking the yes, the person interview, and I'm first analyzing what is the person's actually, what he has or she has written in her resume. So summary is very important part. Then skills. I know you are the fresher, so you don't have that type of skills. So whether I know you are learning the you are learning the C, you are learning the HTML, or you will learn the CSS, any kind of language. You can add those skills if you are the fresher. But if you are the experienced one, then you can write the project experience in that case. So if you are the project like on the Java, so what the functions are used in the Java, like a MVC are using, Angular for you are using, HTML you are using, JDBC connections you are using, or any edu.net or you're using. If you are the Microsoft technology experts, so maybe you are in the .NET full stack developer, .NET front end or back end developer, so you can write those things on the skills. The education, yes, your education means what you have done, whether you have done diploma, whether you have done your engineering, or you have done your any other certification on that, you can write that those things. Achievements, yes, achievements, बचपन से लेके अब तक क्या अचीव किया आपने, जो भी अच्छा है वो लिख देना, जो भी बुरा है वो मत लिखना गाइस क्योंकि अचीवमेंट्स अच्छे होते हैं. हाँ, आई नो कि अचीवमेंट्स बुरे भी हो सकते हैं, बट स्टिल ठीक है, अभी जॉब चाहिए तो अच्छे अच्छे वाले हम लोग अचीवमेंट्स लिखेंगे उसमें. देन आते प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस. अब प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, मैं तो फ्रेशर हूँ भाई, मेरे को प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है नहीं, कैसे करूंगा, कैसे लिखूंगा, लिखू भी कि नहीं लिखू. You have to write, guys. If you are the fourth year person, you will have to do one project that doesn't care about it whether you have done in the Java, whether you have done in the .NET, but you have to write. Or if you are in the second year, so you have to create the oops project. If you are in the third year, you have one subject internet वाला, so उसमें आपको एक वेबसाइट बना के उनको दिखाना होगा, और that website should not be a static, it should be a dynamic. मतलब मेरा डेटा फ्लो होके जाएगा फ्रंट एंड से बैक एंड में भाई, और डेटा सेव भी होगा, ये उनको मैं दिखाऊंगी, और ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मैं अपने इसमें लिखूंगी. तो अब देखते हैं कि ये मेरे को मिलेगा कहाँ पे. So I have prepared one thing for you. There is a one site, testtech.home, where you can see the two formats are there actually. If you're able to my screen, there is a two format. The first one is for, I can say that if you are the fresher, the first one is very important. The second one, if you are the experienced one, then second one is very important for you. So मैं क्या करूँगी, जाऊँगी इधर, डाउनलोड करूँगी, दोनों डाउनलोड करूँगी. अगर आपको आपका लास्ट सेशन मिस हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके लास्ट सेशन के सारे पॉइंट्स मैंने रिकैप जैसे बोलते हैं इधर डाल दिया है, और क्या पॉइंट डिस्कस किए थे. लेकिन अब हम फोकस करेंगे अपने रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स के ऊपर. ठीक है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर. Guys, you can mute yourself so I can conduct the very smoothly this session. Okay, so if I download it from here, I'm go to here again, I'll go to here, I will download it that part.
If you download, then you will get documents. Let me mute guys, all the persons, so we'll not create anything. Mute all. I'm muting. Yes. So I'm going here once again. Okay. So what I'll do, I'll first download this site. You can edit this as well. Okay. So I have already downloaded this format. So I'm conducting now the first format review. Okay. If my name is ABCDEFGHI, so I will write here my first name, my middle name, and my last name. What is your email ID? Email ID is very important because आपको जो भी connect, मतलब if they wanted to connect you, कैसे connect करेंगे आपको? मोबाइल से तो connect होता नहीं, आप नंबर उठाते नहीं हो, मैसेज भी बहुत लेट देखते हो, ये मैंने ऑब्जर्व किया है ग्रुप पे. तो मोबाइल नंबर छोड़ दो गाइस, व्हाट्सअप है लेकिन टाइम नहीं अपने पास. तो यू शुड गिव द ईमेल आईडी. तो ईमेल आईडी को आपको भेजते जाएंगे, लेकिन ईमेल आईडी भी चेक करना जरूरी होता है. कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करो, इसके लिए एवरी डे यू हैव टू चेक योर ईमेल आईडी, तो देना बहुत जरूरी है. अब आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर. अब मैं कहाँ से प्रोफेशनल बन गया? मैं इंजीनियरिंग की, अब तक तो ज्वाइन भी नहीं किया किसी कंपनी में, या फिर ज्वाइन हो गया, क्या मुझे सच में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उस चीज में? अब एक आइडिया बताती हूँ दोस्तों, आपको नहीं भी होगा ना तो लिख दो वहां पे, लेकिन यू हैव टू आंसर. अगर मैं बंदी हूं, अगर मैंने बोला कि मुझे एमवीसी मैंने लिखा है वहां पे, और मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया एमवीसी क्या है, डॉटनेट क्या है, तो यू विल हैव टू गिव द आंसर. अदरवाइज इंटरव्यू को पता चल जाता है भाई इसने सिर्फ इंप्रेस करने के लिए लिख दिया, इसको आता जाता कुछ नहीं है. बट एक और बात बताती हूँ, आप जो लिखोगे वही इंटरव्यूअर को पता रहेगा. मतलब वो आपके पास्ट में जाके चेक करने वाला नहीं है कि यार इस बंदे ने सच में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था क्या, इस बंदे ने सच में इसका मिनी प्रोजेक्ट बनाया था क्या. दे विल नॉट चेक यू, बट दे विल चेक योर नॉलेज. वो कैसे चेक करेंगे? आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिकल पूछेंगे, प्रैक्टिकल पूछेंगे, तो आपको आंसर करना आना चाहिए. दे विल नॉट आस्क द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि मैंने पूछ लिया व्हाट इज ऊप्स, अभी आपने सी पढ़ा है तो सी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है मुझे प्रोग्राम लिख के दिखाओ, आपने प्रोग्राम भी रटा हुआ है, आपने लिख दिया है, लेकिन आप क्या जो दूसरा प्रोग्राम देगा उसके लिए लॉजिक लगा पाओगे? नहीं. तो इसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यू शुड बी टेक्निकली परफेक्ट बिफोर कमिंग इन द आईटी इंडस्ट्री. और जो एक्सपीरियंस आता है वो आप लिखते हो प्रोफेशनल समरी में. अब कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वहां पे लिखेगा हैविंग 2.3 मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको जितना एक्सपीरियंस है यू कैन राइट ओवर दियर. और इफ यू आर द फ्रेशर वन, सो क्या लिखोगे? क्रिएटेड द मिनी प्रोजेक्ट्स. आई हैव द एक्सपीरियंस टू क्रिएट द मिनी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है नहीं, हम फ्रेशर है भाई, तो आई राइट दैट. अब क्या क्या आता है उसमें? इन द लास्ट सेशन आई कवर कि फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट इज द फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट इज द बैक एंड डेवलपर, एंड व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपर. इफ यू वांट टू क्रिएट द वेबसाइट, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ के फायदा नहीं है, सिर्फ ओप्स पढ़ के फायदा नहीं है. यस, ओप्स पढ़ के फायदा है क्योंकि दैट इज द बेस. कोई बिल्डिंग बना रहे हो, अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो क्या बिल्डिंग बनाओगे यार आप लोग. सो ओप्स इज अ बेस, बस उसके आगे भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जो आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाने या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने में बहुत मदद करती है. एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट का लिखा था यहाँ पे, इसलिए आपको डॉटनेट दिख रहा है. बट एमवीसी एपीआई और जो एंगुलर होता है, अजैक्स क्वेरी होती है, एचटीएमएल सीएसएस आप जावा में भी यूज करते हो. अब जावा में तो सिर्फ प्रोग्राम ही देखे मैंने, अगर कहीं पे देखे हैं तो, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम लोग दिखा देंगे अभी प्रोग्राम्स कैसे होते हैं नेक्स्ट ऊप्स वाले डेमो लेक्चर में. बट आपने अगर कुछ भी एग्जाम मतलब ऐसा क्लासेस वाला एग्जाम पर देखा है तो आपको लगता होगा कि यार मैं तो एंटर कर रहा हूँ, 2 नंबर का सम कर रहा हूँ या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें कहाँ से आता है लॉजिक? ये तो बस मैंने ए प्लस बी कर दिया, आ गया मुझे लॉजिक. आपको फ्रंट एंड भी तो बनाना है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएगा तो कोई उसका फ्लो डिसाइड करेगा, कोई डेटाबेस में जाके उसको सेव करेगा, वो सब आप लिखोगे इसमें समरी में. अब डेटाबेस का भी लिख दोगे, एक दो तीन एक लाइन और छाप दोगे कि क्विक एडेप्टेबिलिटी इन द न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब कोई भी अगर आपको वो बोलते हैं कि भाई तुम पाइथन सीख जाओ, भाई तुम एसएपी सीख जाओ, तो मैं क्विकली अडेप्ट कर सकता हूँ, ये उनको इंप्रेस करने के लिए जस्ट लाइन लिखा है. और बताओगे
कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीम, क्योंकि हम लोग के आईटी सेक्टर में टीम वर्क होता है, तो बिलीव इन टीम वर्क एंड सेल्फ मोटिवेटेड। यस, मुझे कोई डीमोटिवेटेड नहीं कर सकता, मैं सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूँ। अगर मैं डीमोटिवेट हो भी जाता हूँ, हो तो नहीं जाओगे विद दी टेस्ट, बट हो भी जाता हूँ तो, बट आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, लिख दोगे यहाँ पे। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब आप फ्रेशर हो तो ये सेक्शन के लिए भूल जाओ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको डालना नहीं, ये उड़ा देना आपके इससे। इफ यू आर द एक्सपीरियंस वन, अब आपके मेरे पास फॉर एग्जांपल ए बी सी कंपनी का एक्सपीरियंस है और सी इज द लेटेस्ट वन, तो मैं पहले सी लिखूंगी, फिर बी लिखूंगी, फिर ए लिखूंगी, डेजिग्नेशन लिखूंगी। मैं पहले टेक्निकल लीड थी, अब एसएससी हूँ, फिर उसके बाद पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अब उसका टाइम लिखूंगी कि मतलब ये 1 साल के लिए मैं ये कंपनी में थी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अब मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई हूँ ये साल में। और यहाँ पे अगर आप कोई लास्ट कंपनी में ज्वाइन हो और आपको छोड़ मतलब स्विच करना है, तो यहाँ पे आप अपना पीरियड नहीं लिखोगे, बस आपका स्टार्टिंग ज्वाइनिंग डेट लिख दोगे। ठीक है, अब आते हैं स्किल एंड कॉम्पिटेंसी के ऊपर। अब स्किल क्या होता है, अब मैंने बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, फ्रंट एंड है, डेवलपमेंट है, क्या क्या होता है उसमें, जावा है, जेडीबीसी आएगा, वेब एपीआई आएगा, एचटीएमएल आएगा, सीएसएस आएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा, अजैक्स आएगा। विजुअल स्टूडियो अब इसलिए बता रही हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहले मतलब जो भी डॉटनेट में एप्लीकेशन यूज होता है उसमें विजुअल स्टूडियो, या फिर आप अपना यहाँ पे जावा का एप्लीकेशन आप जिसमें बनाते हो उसका ये लिख सकते हो। डेटाबेस है, एसक्यूएल आएगा, एडीओ डॉटनेट आएगा, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स आएंगे जो आप पढ़ चुके हो, ये सब आप यू कैन राइट इन दैट। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिख दूं? फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स नहीं लिखने दोस्तों, बी का लिखना है, अपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, 12th का लिखना है, 10th का लिखना है। लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ 10th एंड 12th मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाया था एक कंपनी का, क्लियरली दे हैव मेंशन 12th और 10th में उनको कितने मार्क्स आते हैं आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप बी में और क्लियर है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, 60%। इफ आई एम द लास्ट वन इन दी माई कॉलेज, नो वरी, बट आई हैव द टेक्निकल नॉलेज, सो इट्स गुड फॉर मी। सो 60% लेके आओ, ऑल कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे, इंस्टीट्यूट का, मार्क्स लिख देंगे। बी वाले सीजीपीआई लिखना, 12th वाले परसेंटेज एंड 10th भी परसेंटेज होगा। ठीक है, अब आते हैं अचीवमेंट। अगर आप कोई फ्रेशर हो तो आई नो कि आपको कोई अवार्ड्स तो अभी तक मिले नहीं होंगे, एक्सपीरियंस हो तो अवार्ड्स बहुत मिलते हैं, कुडोज मिलता है, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलता है, ये सब आप अचीवमेंट्स में लिख दोगे। उसके बाद विनर, या फिर आप कहीं पे भी कुछ भी जीते हो, या फिर अभी अभी कैसा होता है कॉलेजेस में, नेशनल टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन, ये तो होता ही है, उसमें पार्टिसिपेट कर देना, बस लिख देना पार्टिसिपेटेड इन नेशनल टेक्निकल प्रेजेंटेशन, या फिर अगर आप जीते हो तो दैट शुड बी मेंशन हियर। अब इंटर कॉलेज है, मैं सिर्फ मेरे कॉलेज में क्यों पार्टिसिपेट करूं भाई, अदर कॉलेज में भी जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। अब मैं क्यों बोल रही हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होगा। अब प्रेजेंटेशन स्किल मतलब मैंने बोला था कि दो बहुत सारे रोल्स होते हैं, डेवलपर होता है, तो अगर आप डेवलपर हो तो इतना ही याद रखना कि आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने वाले को समझाना है। इफ यू आर बीए, बिजनेस एनालिस्ट, स्क्रम मास्टर, देन प्रेजेंटेशन स्किल मैटर्स करता है, तो उसमें ये बहुत फायदा होगा आपका ये सारी चीजों का। अब प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, अगर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर हो तो इसमें आपने जो भी मिनी प्रोजेक्ट्स किए, अभी फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर वाले उप्स का करेंगे, थर्ड ईयर वाले क्या करेंगे, थर्ड ईयर वाले एक वेबसाइट बनाएंगे डायनेमिक वाला वेब एप्लीकेशन, फोर्थ ईयर वाले तो खुद ही बनाने बैठ जाते मिनी प्रोजेक्ट्स, तो ये सब आप प्रोजेक्ट्स इसमें लिख दोगे। अदरवाइज आपके पास इतना नॉलेज नहीं है तो यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स एज वेल, सो वी विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट वन मिनी प्रोजेक्ट, सो यू कैन ऐड दिस हियर। ओके, फिर उसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, भाई मेरा नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेक्स क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, हॉबीज क्या है। बहुत सारे एचआर हॉबीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बी केयरफुल बिफोर राइटिंग दी हॉबीज, ये एचआर बहुत पकड़ते हैं इसमें जो भी आप लिखते हो। दैट वाज द फर्स्ट रेज्यूमे सैंपल। अब मैं बात कर रही हूँ सेकंड रेज्यूमे सैंपल की, काइंड ऑफ सेम है बट थोड़ा जो फॉर्मेट है वो अलग है। तो अब मैं लिखूंगी एबीसी इज द आईटी प्रोफेशनल विद गुड एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट टेक्नोलॉजी, या फिर आप जावा लिख दोगे। उसके बाद एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे मैंने समरी में बोला था आपने क्या क्या किया है उसमें,
Have you created the front end? Have you created the store procedure? What are you helping in the teams? मीन्स टीम्स आप वर्क कर रहे थे, उस टीम में आपका रोल क्या था, दैट यू शुड एक्सप्लेन इन वेरी स्मॉल लाइन, मीन्स आई कैन से दैट 2 to 3 लाइन्स इन द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप किस में लिखोगे? एक्सपर्टीज। व्हाट आर माय एक्सपर्टीज? किस में हूं मैं, कितने मंथ्स के एक्सपीरियंस है मुझे। ईयर्स क्लियरली मेंशन करोगे, मंथ्स क्लियरली मेंशन करोगे, आपका रिलीवेंट एक्सपीरियंस मेंशन करोगे। टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस है तो थर्ड पॉइंट मैटर करता है, प्रायर टू ज्वाइन। अभी कोई आप लोग जा रहे कोई जेड कंपनी में, तो प्रायर टू ज्वाइन जेड कंपनी क्या, कि मैं किसी कंपनी में काम कर चुकी हूँ और मेरा रोल ये था और ये लीडिंग सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, ये सब लिख दोगे। फोर्थ पॉइंट लिखोगे डिग्री के ऊपर, यस मैंने बी की है, उसके ऊपर आपका एक पॉइंट आएगा। फिर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी के ऊपर इन्वायरमेंट्स लिखोगे, आपको विंडोज में काम करना आता है, लैंग्वेजेस लिखोगे, वेब टेक्नोलॉजी लिखोगे, डेटाबेस, सर्वर्स या आईएस इंटरनेट सब एक्सप्लोरर। तो अब ये आईएस क्यों यूज होता है, जब आप कोई एपीआई या फिर कोई सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज बनाते हो, तो दैट टाइम आईएस इज हेल्पफुल। विल गिव द आइडिया अबाउट दैट। डेवलपमेंट टूल्स क्या है, विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, या क्या टूल्स यूज कर रहे हो आप, अदर टूल्स भी, जीरा, गिटहब। अब जीरा किस लिए यूज होता है भाई? जीरा अपना खाने वाला जीरा नहीं होता जो भाजी में डलता है वो। जीरा इज द वन सॉफ्टवेयर वेयर बीए क्या करेगा, बिजनेस एनालिस्ट अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, कहीं पे तो लिख के देगा आपको, तो वो जीरा होता है। अब गिटहब के बारे में क्या बताऊं, मैंने बोला था कि अपना कोड ट्रांसफर होता है डेव इन्वायरमेंट टू क्यूए, क्यूए टू स्टेज टू प्रोडक्शन। तो इसलिए अपना कोड कहीं पे तो सेव होना चाहिए ना, अपना एक सेंट्रलाइज कोड होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी कोई उठ के ना आए कि और बोले कि मैं ये कोड में कोड करना चाहती हूँ अपने रिपोजिटरी में। सो इन गिटहब वी आर मेंटेनिंग द कोड। अब यूनिट टेस्टिंग मैं बता रही थी, टेस्टिंग टेस्टर होता है, अब वो बहुत सारी टेस्टिंग करता है। फॉर एग्जांपल वो कर लेता है अपना एपीआई टेस्टिंग या फिर कोई और टेस्टिंग है। डेवलपर हूं तो मुझे खुद से भी यूनिट टेस्टिंग करना पड़ता है, एक्स यूनिट और एन यूनिट होता है वो काइंड ऑफ। डोमेन्स, अगर आप फ्रेशर हो तो डोमेन्स मत लिखना, इफ यू आर एक्सपीरियंस। डोमेन्स होते हैं बहुत सारे, आपको बता दूं, फ्रेशर हो तो बैंकिंग डोमेन होता है। फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी की बात करते हो, बारक्लेस की बात करते हो, कोई फाइनेंशियल कंपनीज, तो वो बैंकिंग डोमेन। मैन्युफैक्चरिंग होता है बहुत सारे डोमेन्स, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अब हेल्थ केयर डोमेन होता है, तो उसमें डाल सकते हो आपका एक्सपीरियंस डोमेन में है, प्रोक्योरमेंट डोमेन है। तो डजेंट मैटर आपको किस डोमेन्स में एक्सपीरियंस है। आप डेवलपर हो तो इट डजेंट मेक मी डिफरेंस, बिजनेस एनालिस्ट हो तो इसका थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का पहला एक्सपीरियंस देखा जाता है डोमेन्स में। ठीक है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अभी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मैंने लास्ट टाइम ऐसा दिया था इधर, तो ये थोड़ा अगर आपको ये वाला स्किल पसंद है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाला ये कर सकते हो। कंपनी नेम क्या है, अभी कंपनी नेम तो मेरे पास है नहीं, मैं फ्रेशर हूँ तो ये उड़ा दूंगी मैं। प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगी, ये सब ऐसे लिखूंगी, इधर नेम लिखूंगी, समरी लिखूंगी, प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या किया था, व्हाट आर माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट द मेन टेक्नोलॉजी आई हैव यूज्ड इन दैट, एंड द पर्सनल इंफॉर्मेशन, द सेम थिंग, so that both format are available in my site. You can check it. Even you can check the seminar one detail, that is the recap one, just that one, and what points we have discussed in that. So you can download from here. I'll share this link in the group. And last slide, yes dosto, we are offering some crash courses. अब क्रैश कोर्सेस कैसा होगा, फर्स्ट क्रैश कोर्स में क्या होगा कि हम लोग आपका रिज्यूमे रिव्यू भी करेंगे, आपको लिखने में हेल्प भी करेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे आपके लिए, कि मतलब यस इंटरव्यूअर का कैसा एक्सपीरियंस होता है। एचआर इंटरव्यू होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एचआर कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर पूछता है तो उसको निबंध या आपका कुछ भी बताना नहीं है, जस्ट उसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। ये बहुत मतलब जो एचआर होता है ना, मतलब बहुत सोच के क्वेश्चन पूछता है ऐसा, तो उसको डिप्लोमेटिकली आंसर करना है अपने को दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्रैश कोर्स विद टेक्निकल। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसका एक एडवांटेज होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में, सॉरी अपने रेज्यूमे में इसका एक्सपीरियंस डाल सकते हो कि मैंने ये मिनी प्रोजेक्ट किया हुआ है। अगर आपको वो डिप्लॉय करना है तो हम लोग किसी साइट पे भी उसको डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो रेज्यूमर को देखना है, सॉरी इंटरव्यूअर को, कि इसने सच में किया है क्या है प्रोजेक्ट, तो आप उसको दिखा भी सकते हो। उनके पास लैपटॉप तो रहता ही है, उनको बोलोगे सर ये यूआरएल ले लो और देख लो आप, मैंने ये क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं ऐसा भी पूछती हूँ एक्चुअली क्वेश्चन,
अगर कोई बंदा बताता है कि मिनी प्रोजेक्ट मैंने किया है, तो मैं पूछती हूँ कि आपने उसको डिप्लॉय किया था, अगर यस किया है तो मैं बताती हूँ लिंक दे दो मेरे को, मैं देखती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हूँ। क्यों, ये एक एडवांटेज होता है दोस्तों, मतलब अगर आपने मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर आपने डिप्लॉय नहीं भी किया तो आपको एक नॉलेज मिल जाता है, बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, फ्रंट एंड का नॉलेज मिल जाएगा, बैक एंड का मिल जाएगा, एक फ्लो मिल जाएगा आपको, तो आपका जो कंसेप्ट होगा ना वो क्लियर होगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा एटलीस्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपको मिनी प्रोजेक्ट सब करते जाओगे उसी तरह से आपको एक्सपीरियंस इसमें मिलता जाएगा। अब लास्टली, if you want any queries, any questions, you can contact us in tastetech1@gmail.com, or you can visit our site. I'll share that site URL in our group. So ज्यादा टाइम नहीं ले रही मैं आज आपका, ये आप साइट का देख सकते हो। हम लोगों ने अभी जस्ट सेमिनार 1 और सेमिनार 2 का डिटेल्स डाला है। उप्स डेमो लेक्चर, कल एक उप्स डेमो लेक्चर है जिसमें मैं मतलब थोड़े कुछ पॉइंट्स और टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। दैट टॉपिक्स आई विल शेयर ऑन द ग्रुप, सो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको, एक बार आपको मिलता है तो। सो दैट्स ऑल गाइस, एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। So I take it as no. So we'll wrap up this session today and we are concluding this session. So I know you will be a very good in the resume writing skills. So if you have any question, you can contact me, or I can help you to write your resume or review your resume. So we'll do that. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.